Hello students, welcome to my channel Khan's Commerce Tutorial. We are discussing the subject Advanced Accounting. So far, so many videos I have prepared on different topics of Advanced Accounting. Partnership accounts, then preparing partners accounts, then admission of partner, retirement of partner, death of a partner, dissolution of firms, sale of a partnership to a company. Then we have discussed about the company accounts, issue of shares, issue of debentures, underwriting, bonus shares. And lastly, we have done the videos on company final accounts, how to prepare the profit and loss statement and balance sheet of a joint stock company. I have explained you in detail the concepts of all these topics, and we have solved so many problems on these topics of partnership company accounts. So if you want to get the maximum from these videos, with full concentration, watch the videos, not only just to pass the examination, but to get the command on the subject. I have explained you in detail. So earlier, before this, I have already prepared the videos for MBA students, financial management, investment management. Now I have started the videos for BCom students. Now I'm planning to make more and more videos on different subjects, practical subjects of BCom, BBA, MCom, MBA, etc. so that maximum students can get the benefit from these videos. So keep watching, get the maximum from these videos, watch again and again. So now we are going to discuss the new topic called profit prior to incorporation. This is also one of the topic of advanced accounting. Profit prior to incorporation. Incorporation means registration of a company. The company will come into existence from the date of registration. Before registration, no existence of the company. So the question arises, what is this profit prior to incorporation? A newly incorporated company may take over a running business from a date prior to the date of incorporation. कंपनी बनने से पहले, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले एक कंपनी एक दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर लेती है. एग्जांपल, एक पार्टनरशिप बिजनेस है. ये पार्टनरशिप बिजनेस अपना बिजनेस बेच दे रहा है और कंपनी खरीदना चाह रही है, लेकिन कंपनी बनी नहीं अभी. द एग्जांपल देता हूं मैं. फॉर एग्जांपल, द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st April 2015, incorporation date. But the company has taken over a running business of partnership from 1st January 2015. तो रनिंग बिजनेस जो चल रहा है वो 1st January 2015 से टेक ओवर कर ली, लेकिन कंपनी बनी नहीं. कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1st April 2015. तो पहले 3 months, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने के पीरियड को कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. दिस 3 months पीरियड इज कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? वी हैव टू क्लोज द अकाउंट्स. अगर ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर परचेज करें तो व्हाट विल हैपन? द accounts of the partnership business has to be closed. For 3 months, the accounts should be prepared, find out the profit, prepare the balance sheet, lot of, activities, lot of, job has to be done at the time of closing the accounts. So normally, the accounts will not be closed in between. The company will take over the partnership business as on the date of closing the accounts of the partnership. Every year the partnership accounts are closed on 31st December, example. So this company will take over the business from 1st January. So according to Companies Act 2013, a company cannot earn profit before incorporation. Incorporation से पहले company profit earn नहीं कर सकती. लेकिन यहाँ पर the company has taken over the business from 1st January, incorporation on 1st April. तो फिर ये प्रॉफिट जो मालूम करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक हाउ टू कंप्यूट द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, एनी प्रॉफिट अर्न्ड बिफोर इनकॉर्पोरेशन इज नॉट ए रेवेन्यू प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड. This profit will be treated as a capital profit and should be transferred to capital reserve. तो कंपनी क्या करना चाहिए? 1st January से बिजनेस को टेक ओवर कर लिए,
इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अप्रैल को, अब अकाउंट्स क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2015। तो ये एक साल का जो पीरियड है 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2015, ये एक साल में पहले 3 मंथ्स के पीरियड को प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलेंगे, और बाद के जो 9 मंथ्स है वो 9 मंथ्स को पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, फर्स्ट 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, दैट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और बाद के जो 9 मंथ्स का प्रॉफिट है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है, एंड दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट, एंड दैट इज प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। इट्स अ रेवेन्यू प्रॉफिट, कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट 9 मंथ्स का प्रॉफिट है, और कंपनी बनने से पहले का प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दो। दैट इज द प्रोसीजर according to provisions of Companies Act. This is the meaning of the term profit prior to incorporation. Any profit earned before incorporation of a company is called pre-incorporation profit. This will happen when a company takes over a business before the date of incorporation. That's the meaning. Now, what is the method? What are the methods of computing the profit prior to incorporation? Broadly, we have 2 methods. The first method is very simple method, accurate method. Easily we can find out the profit before incorporation. अब कंपनी क्या करना चाहिए, जैसे 3 मंथ्स खत्म हो गए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया, 3 मंथ्स के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट शुड बी प्रिपेयर्ड। 3 मंथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाएंगे। Profit and loss account balance sheet will be prepared normally at the end of the year, but here company is preparing the profit and loss account balance sheet on the date of incorporation. 3 महीने के लिए कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या बैलेंस शीट क्या है, ये मालूम करेंगे 1 अप्रैल को। In this way easily we can find out what is the profit earned in 3 months. It's very easy, but practically it is not feasible. The reason is, to close the accounts, where stock taking is required, we have to suspend the activities of the business, we have to close all the accounts, पूरे accounts को close करना, पुराने 3 महीने के accounts को close करना, फिर next day से नए accounts बनाना, और accounts close करने के लिए stock taking is required. This requires some time. तो कुछ time के लिए पूरे business activities को बंद कर देना पड़ेगा, और business activities को बंद नहीं कर सकते, business running going concern है। तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड, प्रिपेयर द अकाउंट्स फॉर द 3 मंथ्स, क्लोज द अकाउंट्स, फाइंड आउट द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 3 मंथ्स, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज द एक्टिविटीज हैज टू बी सस्पेंडेड। व्हाट इज द सेकंड मेथड? द सेकंड मेथड ऑफ ascertaining the profit prior to incorporation consists of some steps. The first step is trading account has to be prepared for the whole period. Whole period means 3 months plus 9 months, 12 months. एक साल के लिए, पूरे एक साल के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। द पर्पस ऑफ मेकिंग ट्रेडिंग अकाउंट इज टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट पूरे एक साल का मालूम कर लेंगे, जिसमें दोनों भी आ गए, प्री प्लस पोस्ट। देन स्टेप 2, कैलकुलेट द सेल्स रेशो एंड टाइम रेशो। 2 रेशोस की जरूरत पड़ेगी हमको, एक सेल्स रेशो, एक टाइम रेशो। सेल्स रेशो इज द रेशो ऑफ सेल्स बिटवीन प्री एंड पोस्ट। सपोज एग्जाम्पल, एक साल का सेल्स 12 लाख रुपीज है, 12 लाख रुपीज में से 3 लाख रुपीज का सेल्स जो है वो फर्स्ट 3 मंथ्स का है, और रिमेनिंग जो सेल्स है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। एग्जाम्पल 9 lakh rupees, example I'll give you, 9 lakh rupees is the total sales. Total sales 9 lakh में से 3 lakh rupees pre का है, 6 lakh rupees post का है। तो 3 lakh rupees sales are pre-incorporation sales, 6 lakh rupees sales are the post-incorporation sales. तो रेशो क्या हो गया? 3:6, 3:6, 1:2. This 1:2 is the sales ratio. Then secondly, we need the time ratio. We require the time ratio. How much time period is there before incorporation and how much time period after incorporation? In our example, अभी मैं example दिया हूं मैं कि 1 अप्रैल को incorporation हुआ, तो January, February, March, 3 months. 3 months period is pre-incorporation, 9 months period is the post-incorporation. तो time ratio क्या हो गया? 3:9.
3:9. So these two ratios we require beforehand for the second method. So time ratio and sales ratio we have calculated in the second step. Now third step is apportion the gross profit in sales ratio. Apportion का मतलब होता है divide. जो एक साल का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, फर्स्ट स्टेप में हम मालूम कर चुके हैं हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 1 ईयर. दैट ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इन द रेशियो ऑफ सेल्स. यहां पर पहले ही दो रेशियो मालूम कर लिए, सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो. अब ग्रॉस प्रॉफिट को अपोर्शन करेंगे दोनों में बिटवीन सेल्स रेशियो. नेक्स्ट स्टेप 4, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स should be apportioned in the sales ratio. अब सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने एक्सपेंसेस होती हैं, सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कमीशन, बैड डेट्स, एडवर्टाइजिंग, all these are the expenses which are debited to P&L account. अब ये P&L account के जो डेबिट साइड पे आइटम्स रहते हैं उसके कुछ रिलेटेड टू सेल्स रहते हैं, कुछ रिलेटेड टू टाइम रहते हैं. तो हमको ये मालूम करना कौन से आइटम्स सेल्स को रिलेटेड है. तो एग्जांपल्स आर कमीशन ऑन सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, एडवर्टाइजिंग. फ्यू एग्जांपल्स, एडवर्टाइजिंग है, डिस्काउंट अलाउड है, कमीशन ऑन सेल्स है, बैड डेट्स है. ये ऐसे आइटम्स है जो सेल्स को रिलेटेड है. तो दीज आइटम्स शुड बी डिवाइडेड बिटवीन प्री एंड पोस्ट इन द रेशियो ऑफ सेल्स. तो सेल्स रेशियो को यूज करके ये आइटम्स को डिवाइड करेंगे between pre and post. Next, expenses related to time should be apportioned in the time ratio. Here it requires your logic, your knowledge. कौन सा आइटम रिलेटेड टू टाइम है, कौन सा आइटम रिलेटेड टू सेल्स है, ये आपको मालूम रहना मस्ट है. तो जो आइटम्स टाइम को रिलेटेड है उसको टाइम रेशियो से डिवाइड करेंगे. एग्जाम्पल्स आर सैलरीज है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, डिप्रिसिएशन है, सैलरीज है. These are the few examples of those items which are related to time, and these items should be divided between pre and post incorporation period on the basis of time ratio. तो कुछ items को time ratio में divide करेंगे और कुछ items को sales ratio में divide करेंगे. Now sixth step, expenses exclusively related to pre and post incorporation period should be allotted to that period only. कुछ ऐसे एक्सपेंसेस रहते हैं जो सेल्स या टाइम को रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक्सक्लूसिवली या तो प्री में जाएगा या पोस्ट में जाएगा. इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. तो फ्यू आइटम्स आर देयर व्हिच आर एक्सक्लूसिवली टेकन ईदर इन पोस्ट और इन प्री. तो इसका एग्जांपल है, यहां पर कुछ एग्जांपल दिया हूं मैं. डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स फीस एटसेट्रा. तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स फीस, डिबेंचर इंटरेस्ट ये सिर्फ कंपनी में हो सकते. ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न या पार्टनरशिप में डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं होता, डिबेंचर रहता ही नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं होता. उसी तरह डायरेक्टर्स फीस नहीं होती है. तो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस दीज आइटम्स, डिबेंचर इंटरेस्ट और दिस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और वन मोर आइटम डायरेक्टर्स फीस, व्हेन यू कम अक्रॉस दीज आइटम्स टेक इट एक्सक्लूसिवली इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. कहां पर लेंगे इसको? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, कंपनी में लेंगे. एंड सिमिलरली पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ऐसे आइटम्स है जो कंपनी में नहीं रहते. तो दीज आर एक्सक्लूसिवली टेकन इन प्री आइटम्स. तो these are the steps you have to remember for finding out the profit prior to incorporation in second method. Again I repeat, in this second method, first of all make a trading account for the whole year, for the complete period, pre and post. Find out the gross profit. पहला. Second step, find out the sales ratio and time ratio. रेशियो मालूम करेंगे सेल्स का रेशियो और टाइम रेशियो बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. थर्ड स्टेप, अपोर्शन द ग्रॉस प्रॉफिट. जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसको सेल्स के रेशियो में दोनों में डिवाइड कर देंगे, प्री एंड पोस्ट में. उसी तरह कुछ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स रहेंगे, उसको सेल्स रेशियो को यूज करके डिवाइड करेंगे. एग्जांपल कमीशन ऑन सेल्स है, एडवर्टाइजिंग है, बैड डेट्स है एटसेट्रा, डिस्काउंट अलाउड है, ये आइटम्स. नेक्स्ट कुछ एक्सपेंसेस ऐसे रहते हैं जो टाइम को रिलेटेड है, इसको टाइम रेशियो को यूज करके डिवाइड करेंगे. एग्जांपल है सैलरीज, रेंट, देन डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस. These are the items which are related to time. So it should be apportioned on the basis of
टाइम रेशियो। कुछ आइटम एक्सक्लूसिवली पोस्ट में जाएंगे या एक्सक्लूसिवली प्री में जाएंगे। इस तरह जब पूरे एक्सपेंसेस को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद सेल्स में से ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, विल गेट द प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। इस तरह डिवाइड करने के बाद हमको प्रॉफिट आ जाएगा कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कितना है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कितना है। जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट रहेगा उसको कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे एंड दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो रहेगा दैट इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। दिस इज द ओनली थ्योरी ऑन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं है, ओनली फ्यू प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू सॉल्व। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड how to find out the profit of a company before its incorporation. That's it. In the next session, we'll start the problems on profit prior to incorporation.